Welcome back, Chi. We were talking about the future challenges and the future predictions, that what future we're going to witness in 2030. To further continue our discussion, we'll be having, first of all, a short interval, and then we'll be talking about different perspectives of what marketing is talking all about. So I hope that in the near future, as we were just talking about the future predictions, the Coke would be the favorite diet of the insects as well. But anyway, that was very interesting, and I thought I should share with you that how happiness is not only related with the humans, happiness is also related with the insects as well. And Coke is one of the major happiness triggers that they can have. Last but not the least, our topic is about the e-marketing. नो डाउट अभी मैंने कुछ आपके साथ इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर मुख्तसर सी बात की है, लेकिन ई मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी आई हैव प्लेस्ड फ्यू आइडियाज फॉर यू. जब हम इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा, दैट वुड बी दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस, फ्रॉम डिजाइनिंग इट्स प्रोडक्ट्स, setting the price strategy, or analyzing sales statistics and collecting customer feedback. ये तो आपका टिपिकल मार्केटिंग का कॉन्टेक्स्ट हो गया. और इस कॉन्टेक्स्ट को जब हम ई मार्केटिंग में ट्रांसलेट करते हैं तो रेफर्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, वेबसाइट्स, ईमेल्स, एसएमएस, including its wide variety of options and tools to conduct your marketing activities and achieve your marketing objectives. So that is the main concern in e-marketing. E-marketing के लिए जो tools use किए जाते हैं, they are business websites, सर्च इंजन्स, जो अभी आपको पिछली स्लाइड्स के ऊपर भी मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के केस में, डिजिटल मार्केटिंग के केस में, दीज आर ऑल द प्लेटफॉर्म्स यू नीड टू यूज. सो आपकी बिजनेस वेबसाइट्स, सर्च इंजन्स, ईमेल्स, ऑनलाइन न्यूज़लेटर्स, ऑनलाइन कैटलॉग्स, ऑनलाइन प्रेस रिलीजेस, ऑनलाइन सर्वेज, बैनर एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये तमाम वो एरियाज हैं जो कि मार्केटिंग के साथ एसोसिएटेड हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पर्सपेक्टिव्स. ई-मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग आर टू गेट द राइट प्रोडक्ट, प्रमोटेड इन द राइट वे, सोल्ड एट द राइट प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटेड एट द राइट प्लेस, एंड इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल. ओके, सो ये हमारा मेजर कंसर्न है कि जिसके बगैर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जाने का कोई फायदा वो नहीं होगा. So examples of e-marketing, it might be online surveys, it might be associated with the website to display and sell your products, it might be internet advertising to promote your business, and it might be some software to collect and analyze your customer information. जैसे कि बेशुमार हमारे पास CRM softwares जो हैं वो available हैं. So there is a key to e-marketing which says that the key to successful e-marketing in today's business environment is to place your clients in control. Allow them to choose how often and what type of messages they receive, thus creating a more meaningful relationship with your business. This is commonly referred as permission marketing as well. ये हमारे पास एक concept और आ गया. So your e-marketing messages and tools should aim to deliver information that the consumer wants, that they perceive to be valuable. Remember कि जब हम e-marketing की discussion कर रहे हैं तो e-marketing is not an alternative to your existing marketing plan. In fact, you may already have a marketing plan that identifies your marketing objectives, outlines your key strategies designed to achieve those objectives, and guide your daily marketing activities. Okay, so e-marketing is like the marketing which you are actually doing, लेकिन उसमें फर्क जो आ जाएगा वो जाहिर है कि involvement of the online media वो आ जाता है. So with e-marketing you can develop techniques to enhance this existing plan to make your marketing activities more effective, smarter, and more efficient
and obviously cheaper, and you may even find that you can tap into new markets both locally and overseas. When we discuss this topic, that how would e-marketing enhance my existing marketing plan? Remember that with the use of internet-based product catalogs, you can reduce your printing costs and maintain a higher quality of product information for your customers. और उसमें बेशुमार तरह के आपके वो फैक्ट्स भी आ जाएंगे, बेशुमार तरह के आपका इंफॉर्मेशन मटेरियल आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कस्टमर को ज्यादा बेहतर ओरिएंटेशन वो दे सकता है. इसके अलावा नो डाउट हमारे पास सो मच फैसिलिटीज अब अवेलेबल हैं कि जिसमें हम उनको 3D व्यूज भी दिखा सकते हैं, हम उनको कंप्लीट फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज को एक ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर शो भी कर सकते हैं, हम वर्चुअल रियलिटीज क्रिएट कर सकते हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. So by utilizing marketing information systems, you can analyze your sales information to make more informed decisions, and customers all over the world can view your products with a website. Okay. So when we talk about the business perspective of e-marketing, उसमें affordability की जब बात की जाएगी, तो remember कि the cost of e-marketing depends on which strategies you choose to implement. Any business can start using simple e-marketing techniques such as email, newsletters, computer-based data management, and internet search by purchasing a computer and connecting to the internet. Okay? और ये it's not a big deal these days. आप अगर सिंपल ईमेल रिप्लाई भी कर रहे हो तो यू आर पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग ई मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट. अगर आप सिंपल एसएमएस भी भेज रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मार्केटिंग आपने इन्वॉल्व कर ली है. सो बिजनेसेस कैन ओनली स्पेंड मेनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स utilizing the services of a professional अगर जरूरत हो, based upon कि आपके बिजनेस का वॉल्यूम इतना है जहां पर you need to hire the professionals. तो again the choice is yours. Otherwise आजकल जनरल ओरिएंटेशन के अंदर भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से भी आप ओरिएंटेड इतने हो जाते हो कि आप सिंपल एसएमएस और सिंपल वेबसाइट डेवलपमेंट और सिंपल ईमेल रिप्लाईज के जरिए भी अपने आप को डिजिटलाइज वो कर सकते हो. सो हमारा जो बेसिक प्रोसेस इसमें यूज होता है is basically related to the marketing plan. उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं, हम सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं और हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बना रहे हैं. ये हमारे पास मेजर कंसर्न्स हैं in the marketing process, and obviously the same concerns are for the E aspect as well. अब उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे इश्यूज, ईमेल कैंपेन्स, बैनर एक्सचेंज, बिजनेस वेबसाइट्स डेवलप करना, मोबाइल फोन मार्केटिंग, नो डाउट दीज आर द टॉपिक्स जिसके ऊपर फर्दर डिटेल और फर्दर डिस्कशंस जो हैं वो की जा सकती हैं. मोबाइल मार्केटिंग, एज यू ऑल नो, all of us are almost having 1 or 2 or 3 sets with us as a mobile gadget, जो कि हमें बहुत सारी जिंदगी के एस्पेक्ट्स में वो हमारे लिए एक जरूरी चीज अब वो बन चुकी है. and it is not just with us, worldwide there are so many people who are actually above the poverty line. They are mostly engaged in this mobile aspect. So mobile marketing के केस में it is said that mobile telephone marketing is the use of mobile phone technologies, जिसमें के वॉइस, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया मैसेजेस, ये सब कुछ आपका इन्वॉल्व हो जाता है. और बेशुमार प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल है जिनके साथ आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कस्टमर के साथ डाटा शेयरिंग वो कर सकते हो. सो विद अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यूज ऑफ मोबाइल टेलीफोन्स नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसेंट years in rest of the world, हर तरफ चूंकि ये टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर रही हैं, so these are the things which we need to focus upon. अब उसमें शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, मल्टीमीडिया सर्विसेज, आपके वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जीपीआरएस, आपके जो जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जिनको हम यूज करते हुए अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजेस के एनवायरनमेंट में कस्टमर के साथ एसोसिएशन के लिए, सप्लायर्स के साथ एसोसिएशन के लिए वो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स वो कर रहे हैं. सो एसएमएस मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो शॉर्ट सर्विस आपका जो मैसेज का है उसमें क्या होगा कि आप एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो आप भेज सकते हो, कस्टमर के रिप्लाईज उसमें गेट कर सकते हो. और मोबाइल फोन यूजर्स कैन आल्सो डाउनलोड डिफरेंट स्क्रीन सेवर्स फ्रॉम द मोबाइल फोन टेलीफोन एप्स. आपकी डिफरेंट आपकी स्मार्ट टोन्स उसमें सेट हो जाती हैं. बेशुमार एस्पेक्ट्स के जरिए आप एसएमएस मार्केटिंग को यूज कर सकते हो. ठीक है. So the main use of SMS is by mobile phone users, especially the youth market, sending messages to each other via their mobile phones or via a computer or mobile phones. Okay. So computer की involvement भी obviously उसके साथ synchronize कर जाती है. So there are technologies
जो कि आपको बल्क मैसेजेस भेजने में भी वो मदद देती हैं, और उन बल्क मैसेजेस से आप एक वास्ट कस्टमर बेस को अपना मैसेज, अपना इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हो। याद रखिएगा कि मार्केटिंग के जो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, बेशुमार ब्रांड्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, इंटरनेट की इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, और इन तमाम चीजों के अंदर हम खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। हम एट द सेम टाइम बायर्स भी हैं, हम एट द सेम टाइम सेलर्स भी हैं, हम एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स भी हैं, हम एट द सेम टाइम कस्टमर्स भी हैं, हम एट द सेम टाइम सप्लायर्स भी हैं। हर शख्स, हर इदारा, हर ब्रांड वो अपने मुताबिक अपनी सस्टेनेबिलिटी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी उसको गुजारने की और उसको चलाने की कोशिश वो कर रहा है। एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट वंस आई हर्ड इन ए लेक्चर, उस स्टेटमेंट के ऊपर मैं अपनी आज की डिस्कशन का इख्तिताम करूंगा, और वो ये था कि द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग सो मेनी थिंग्स, द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर, द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर, एंड एट लास्ट द कंज्यूमर इज कंज्यूम्ड। ओके, सो याद रखिएगा कि बिफोर वी गेट कंज्यूम्ड, हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन और हम अपनी पार्टिसिपेशन इस तरीके की देकर जाएं कि जिससे हमारा नाम, हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस वो लोगों के जहनों में ताजा रह सके, जिंदा रह सके। जज़ाकल्लाह खैर फॉर टुडे, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।